Namaskar, a very cordial welcome to one and all. So, in the extension of our Quest series, today I will be taking up the questions and some concepts of the economics. This is the second video of the economics. Today I'll be covering up the questions and the concepts of the banking topic. That is a very important topic. So, before I start, I have a small announcement to make. Jokta Academy is starting a new batch from 21st April 2023 at our Chandigarh center. So, आप इस नंबर पे कॉल करके you can inquire more about the admissions. Thank you. So, let's get started with the first question. First question reads, consider the following statements. A Reserve Bank of India was established on the recommendation of the Chamberlain Commission. C.D. Deshmukh was the first governor of RBI. Third is a repo rate is the rate offered by the banks to their prime customers. Okay. So explaining about this little, the Reserve Bank of India, as you know, is the central bank of the India. It was established not on the recommendation of the Chamberlain Commission, but the commission here is the Hilton-Young Commission. Hilton-Young Commission that was constituted in the year 1926 during the reign of Lord Reading. Lord Reading के टाइम पे एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुई थी दैट रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन इज C.D. Deshmukh was the first governor of RBI. He was the first governor of the RBI but from the Indian origin. ये इंडिया के थे जो फर्स्ट गवर्नर थे, बट हेयर दे आर आस्किंग द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द RBI. तो फर्स्ट गवर्नर वाज ऑसबॉर्न स्मिथ. आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ. बट अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, तो द आंसर वुड बी C.D. Deshmukh. नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड स्टेटमेंट, रेपो रेट इज द रेट ऑफर्ड बाय द बैंक्स टू देयर प्राइम कस्टमर्स. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस, I would like to take you to the functions of the RBI. देखिए, RBI is the apex bank of India. It has generally तीन functions. First, it is the controller. As I have discussed in the previous video of the economics, controller किस चीज को कंट्रोल कर रहा है? The interest rates, the inflation and the money supply. So the RBI is the controller. Second function discharged by the RBI होता है regulator. It is the regulator. Regulator means it is regulating all other banks. All other banks should be in concurrence to the RBI. The third is the controller, regulator, and the third is the lender, or you can say the banker. The RBI is called as the banks to the bankers, right? Because it lends the money to the banks, the other banks. It may be private banks, commercial banks, public banks, differential banks. So RBI lends the money. Okay, so having said so, अब RBI जब इतने सारे फंक्शंस डिस्चार्ज कर रहा है, तो इसको ऑपरेट करने के लिए, इतने सारे फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए, the RBI must need certain tools, RBI must need certain instruments. तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द की इंटरेस्ट रेट्स. की इंटरेस्ट रेट जिसमें फर्स्ट इज द बैंक रेट. देखिए, बैंक रेट ऐसा रेट होता है, दिस इज द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स द मनी to the banks without collateral या without security. That means if
Bank A has to obtain the loan from RBI. They will go to RBI and RBI will lend them money, but उनको security कुछ नहीं रखनी होती. So this is the special part about the bank rate. Second is marginal standing facility, that is known as the MSF. ये भी एक तरीके का interest rate होता है. This is the rate at which the RBI lends money to the other banks, but they have to keep something as collateral. Collateral means security के तौर पे कुछ रखना होता है. And what is that thing under the MSF is the government securities from the SLR quota. I'll be explaining this in a bit. So third is repo rate. देखिए, दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन आवर क्वेश्चन. रेपो रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जिस पे आरबीआई लेंड्स द मनी टू द अदर बैंक्स विद द कोलेटरल. यहां पे भी कोलेटरल रखना होता है, बट कोलेटरल क्या रखना होगा? द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अदर देन फ्रॉम द SLR कोटा. सो सी द डिफरेंस. यहां पे कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही रखनी है, बट फ्रॉम द SLR कोटा. यहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको कोलेटरल में रखनी होगी दूसरे बैंक्स को, एंड दैट शुड नॉट बी फ्रॉम द SLR कोटा. वन थिंग. एंड सिंस द बैंक has taken the loan from the RBI, और in return government को उन्होंने क्या दिया है? Government securities. लोन लिया RBI से, and in return they have given the government security. Now the bank A, let's say, is HDFC, and they are taking the loan, borrowing from the RBI. So RBI will give them the loan, and in return they will have to keep the government securities as collateral, as I have explained here. ठीक है जी. उसके बाद the special thing about this repo rate is, बाद में ये जो government securities है, let's say इस government securities की value थी ₹100. जब HDFC will return the loan to RBI, उसके बाद इनको जो government securities RBI के पास है, this need to be repurchased. The word is repurchased, and repurchased at higher rates. Repurchase at higher rates. Higher rate पे repurchase करनी होती है. So this is the repo rate, concept of the repo rate. Okay, now coming on to the question. So repo rate is the rate offered by the banks to their prime customers? No, because I have explained that repo rate एक ऐसा rate है जिसपे RBI will lend the money to the banks with the government securities as the collateral, and they will form the agreement जहां पे government securities बाद में बैंक को higher rate पे purchase करनी होती है. So the answer to this would be, this is wrong, this is also wrong. So the answer would be none are correct. None are correct. Now coming on to the second question. The first Bank of India was Awadh Commercial Bank, the General Bank of India, Bank of Hindustan and Allahabad Bank. तो इसका आंसर होगा the Bank of Hindustan. This was the first bank that was established in India, जो कि 1770 में establish हुआ था. कहाँ पे? कैलकाटा में. This was a factual question. Now coming on to the next question. It reads, the context of independent India's economy. In context of the independent India's economy, which one of the following was the earlier event to take place? देखिए, यहाँ पे आपसे chronology पूछी है कि इन चारों में से, these are different 4 events, क्या पहले हुआ था? So we will see the nationalization of the insurance companies. ये हुआ था. This has happened in the year 1956 जब LIC को nationalize किया गया था. Second, nationalization of the State Bank of India, ये 1955 में हुआ था. Then enactment of the Banking Regulation Act जो 1949 में हुआ था. And then is the nationalization of the 14 banks that has happened in the year 1969. Okay, explaining about this
I would like to take you to the historical background. थोड़ा सा मैं आपको historical background बताना चाहूँगा. Banking, that means banking evolution. इंडिया का banking evolution. देखिए, we can divide this into two phases. एक banks जो flourish किए प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, दैट मीन्स बिफोर 1947. उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी कुछ बैंक्स फ्लरिश किए. देखिए, टॉकिंग अबाउट दिस पीरियड, यहाँ पे क्या हुआ, देखिए एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि सबसे पहले बैंक 1770 में हुआ था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान. उसके बाद देयर वर मेनी बैंक्स, बट वी शैल डिस्कस अबाउट दीज 3 बैंक्स. बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मेड्रास एंड बैंक ऑफ बंगाल. देखिए, ये 3 बैंक्स थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश किए थे. इसके बाद प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से यहाँ पे 1921 में ये इन बैंक्स को सबस्यूम कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया और बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी. एक तो ये इवेंट हुआ था, प्री इंडिपेंडेंस इवेंट. दूसरा, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि 1935 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन आरबीआई भी इस्टेब्लिश हो गया था. सो दीज आर द मेजर इवेंट्स. उसके बाद हम जाएंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में. देखिए, सबसे पहली चीज जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में हुई, दैट वाज दिस इनैक्टमेंट ऑफ द लॉ, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो कि 1949 में हुआ था. वन थिंग. उसके बाद 1921 में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है उसको 1955 में नेम चेंज कर दिया गया एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज इमर्ज्ड हियर इन द ईयर 1955. और ये इंडिया का पहला बैंक था जो कि नेशनलाइज्ड बैंक था. फर्स्ट नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था. उसके बाद 1956 में LIC was nationalized, the insurance companies were nationalized. उसके बाद the other event is of the 1969, जब this is a very famous event in the banking history, जब 14 बैंक्स को, इंडिया के 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया बाय द erstwhile प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. उसके बाद 1980 में भी एक और नेशनलाइजेशन हुई थी जहाँ पे 8 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड. Right, so these were certain events. But यहाँ पे you will see there was the time where there was the wave of liberalization. That means I am talking about the post 1991 era, जहाँ पे you will see the establishment of the many private banks, ICICI Bank, HDFC Bank, IDBI Bank. Many banks flourished after this the phase of 1991. So this was the history. So देखिए, 1990 nationalization has happened in 1956. It is 1955 the nationalization of State Bank, then enactment of the Banking Regulation Act and nationalization of 14 banks 1469 में. तो answer would be the Banking Regulation Act जो सबसे पहले हुआ था. So coming on to the next question, which of the following is not included in the assets of a commercial bank in India? Here there is a question where assets and deposits के बारे में हम देखेंगे. यहाँ पे पूछा गया कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनकी जो पूंजी होती है, जिनको हम एसेट्स बोलते हैं, उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है. सो विल सी द एडवांसेस कम. एडवांसेस मीन्स द लोन्स, जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं बैंक्स. डिपॉजिट मीन्स जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं बैंक्स. इन्वेस्टमेंट मीन्स यस इट इज़ पॉसिबल कि बैंक्स इन्वेस्ट करे कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में फॉर दैट मैटर, या मनी एट कॉल. मनी एट कॉल होता है द इमीडिएट मनी दैट इज with the bank. These 4 things are there. Okay, we shall see the concept behind this. देखिए, बैंक क्या है? To put it very simply, बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. देखिए, आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बैंक इन द कमिंग क्वेश्चंस, बट मैं आपको बहुत ही जनरली यहाँ पे बताता हूँ. बैंक में बैंक्स हैज एसेट्स एंड बैंक हैज लाइबिलिटीज. देखिए, कब कोई एंटिटी बैंक बनती है? व्हेन दे आर लेंडिंग प्लस दे आर टेकिंग द डिपॉजिट्स. दीज आर द 2 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बैंक्स. देखिए, बैंक्स की बात हम करें, बैंक्स के कुछ एसेट्स होते हैं. एसेट उनकी पूंजी, जैसे कि लोन्स, जो वो लोन एडवांस करती है लोगों को. इसके अलावा इन्वेस्टमेंट,
इसके अलावा मनी एट कॉल, ये उनके कुछ एसेट्स होते हैं, दैट मीन्स पूंजी। इसके अलावा बैंक्स की कुछ देनदारियां भी होती है जिनको हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। दी डिपॉजिट्स दे आर टेकिंग फ्रॉम यू, वो क्या होगी, उनकी एसेट्स तो होंगे नहीं, वो क्या होंगे, डिपॉजिट्स, क्योंकि उनको वो वापस देने होते हैं। डिपॉजिट्स को भी अगर हम ब्रेक करके देखें, डिपॉजिट्स भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके डिमांड डिपॉजिट्स और डिमांड लाइबिलिटीज, एक होते हैं आपके टाइम लाइबिलिटीज। देखिए, इन जनरल टाइम लाइबिलिटी मीन्स विच आर डिपेंडेंट ऑन दी टाइम, जैसे कि आप एफडी करते हैं, आरडी करते हैं। एंड डिमांड मीन्स ऑन डिमांड बैंक्स को देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल दी सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट्स फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द डिमांड लाइबिलिटीज of the banks. So this was the general introduction. So coming on to the question, so advances, as I have told you, will be the part of the assets. Yes. Deposits, no, they are the liabilities because they have to be returned back, right? And the investments will be the assets and money at call will also be the assets. So answer would be the deposits. Now coming on to the next question, we have to choose the correct option. The banks listed in the Schedule 2 of the RBI Act 1935 are considered as the scheduled bank. Minimum paid up capital for scheduled banks is rupees 10 lakh. देखिए यहाँ पे concept है about the scheduled banks. The scheduled bank. देखिए RBI Act which has established the Reserve Bank of India is of the year 1934. इस एक्ट के तहत एक शेड्यूल है, शेड्यूल दैट इज शेड्यूल 2। दैट मीन्स कोई भी बैंक अगर एनलिस्ट हो जाता है शेड्यूल 2 में, उस बैंक को हम क्या बोलते हैं, द शेड्यूल्ड बैंक। देयर आर सर्टेन थिंग्स। देखिए इसके ऑपोजिट क्या होगा, द नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, वन इज शेड्यूल्ड बैंक्स, अदर इज द नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक्स को कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। एक तो दे हैव बीन क्रिएटेड थ्रू द रेगुलेशन ऑफ द आरबीआई, वन थिंग। उसके बाद दे कैन लेंड, दे कैन टेक द डिपॉजिट्स, देर आर सर्टेन राइट्स, एक्सक्लूसिव राइट्स जो कि शेड्यूल बैंक्स को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि द बैंक्स लिस्टेड इन द शेड्यूल 2, यस द शेड्यूल 2 टॉक्स अबाउट द शेड्यूल्ड बैंक्स। सेकेंड पूछा गया है द मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर शेड्यूल्ड बैंक्स इज रुपीज 10 लाख। हेयर द कॉन्सेप्ट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल। अब ये क्या चीज़ है मिनिमम पेड अप कैपिटल? देखिए मिनिमम पेड अप कैपिटल को अगर हमें डिफाइन करना हो तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ द मनी दैट द बैंक्स हैज कलेक्टेड और जनरेटेड थ्रू सेलिंग द शेयर्स, सेलिंग देयर शेयर्स in the share markets, right? That is known as the paid up capital. तो किसी बैंक को अगर शेड्यूल 2 में एनलिस्ट होना है तो उसकी पेड अप कैपिटल शुड बी रुपीज 5 लाख, ओनली 5 लाख, इट इज नॉट दी 10 लाख। तो डू रिमेंबर दिस कि शेड्यूल बैंक्स की पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट है ओनली 5 लाख। दैट मीन्स उनके 5 लाख वर्थ रुपीज 5 लाख के उनके शेयर्स होने चाहिए, कहाँ पे, शेयर मार्केट में। So this is the concept behind this question. Coming on to the next question, consider the following statement about commercial banks. देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में. Now the concept is about the commercial banks. They are regulated under the Banking Regulation Act 1949. Only the public sector banks comes under the commercial banks. देखिए in this question the answer would be, we have to choose the correct, तो आंसर होगा ओनली 1। क्यों? क्योंकि यस द कमर्शियल बैंक्स आर रेगुलेटेड, कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट किया जाता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। और क्या सिर्फ इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही आते हैं? नहीं। सो टू अंडरस्टैंड दिस आई वुड लाइक टू टेक यू टू द बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया में बैंकिंग स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि ये बैंकिंग स्ट्रक्चर हमारे आगे वाले क्वेश्चंस में भी काम आएगा। सो आई विल एक्सप्लेन दिस। देखिए ऑल टुगेदर
there is something like financial intermediaries. Financial intermediaries ऐसी entities होती है which works as the middleman. Middleman किसके लिए? जो पैसा देना चाहता है और जो पैसा लेना चाहता है. These are such entities. So in India, the financial intermediaries जो entity है which are working as the which channels the money. कहाँ से channel करता है? जिसके पास surplus पैसा है and the person who needs money. राइट उसकी चैनलाइजेशन जो हमारे लिए करता है द एंटिटी हेयर इज मेंशन्ड एज द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. तो इंडिया में वन इज द फॉर्मल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, सम आर द इनफॉर्मल. If we further break the formal intermediaries, you will find the formal intermediaries में banks are there, banks, and there are some non-bank financial intermediaries. देखिए अगर हम banks को देखें तो सबसे पहले होते हैं हमारे पास कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं? एज द नेम इज इटसेल्फ सेइंग द मीनिंग. देखिए कमर्शियल ऑपरेशंस क्या होते हैं? व्हेन यू आर एबल टू लेंड, व्हेन यू आर एबल टू टेक द डिपॉजिट्स. जब आप लेंडिंग का और डिपॉजिट का काम करने लग जाते हो, दैट दोज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आर नोन एज द कमर्शियल बैंक्स. अगर वो फर्दर शेड्यूल 2 में एंटर है तो वो क्या कहलाएंगे? कमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. राइट तो इफ वी ब्रेक द कमर्शियल बैंक्स मोर, अगर हम कमर्शियल बैंक्स को फिर से ब्रेक करें तो यू विल सी देयर आर पब्लिक बैंक्स. पब्लिक बैंक्स भी होते हैं. फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स यानी जो सोलली हेल्ड बाय दी, ओन्ड बाय दी प्राइवेट एंटिटीज. पब्लिक बैंक मीन्स कि गवर्नमेंट उसको होल्ड कर रही है. उसके अलावा वी हैव द फॉरेन बैंक्स ऑल्सो, और उसके अलावा डिफरेंशियल बैंक्स. आई विल बी एक्सप्लेनिंग देम in the further questions, this differential banks concept. So this is the general structure of the banks in India. उसके अलावा नॉन बैंकिंग भी होते हैं जैसे कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. राइट सो कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, so here it is only one is correct because यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अलावा प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स और डिफरेंशियल बैंक्स भी आते हैं किसकी डेफिनेशन में? कमर्शियल बैंक्स की. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the purpose of setting up of the small finance banks in India? Now the third category that we'll be covering about the bank structure is the small financial company. देखिए, to supply credit to small business units, one, to supply credit to small and marginal farmers. Third is to encourage the young entrepreneurs to set up the business, particularly in rural banks. देखिए, I would like to take you to this diagram. देखिए मैंने आपको बताया था, here they are asking about this, the differential banks. देखिए होता क्या है, डिफरेंशियल बैंक्स आर द पार्ट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स. वो भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, डिफरेंशियल बैंक्स. बट व्हाई वी हैव गिवन द नेम डिफरेंशियल? बिकॉज द ऑपरेशन दे आर कैरिंग आउट, दे आर डिफरेंट. वो थोड़े से डिफरेंट है क्योंकि जो यूनिवर्सल बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स जो कि नॉर्मल बैंक्स होते हैं, वो बहुत सारे फंक्शंस करते हैं. बट द डिफरेंशियल बैंक्स दे ओनली कैरी आउट द स्पेसिफिक फंक्शंस. तो उनको क्या बोलते हैं हम? डिफरेंशियल बैंक्स. देखिए डिफरेंशियल बैंक्स को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं. एक कैटेगराइजेशन इज अबाउट द स्मॉल फाइनेंशियल बैंक एंड अदर इज द पेमेंट बैंक्स. देखिए द सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू बैंक्स इज दैट ये कंपनीज एक्ट जो 1956 का है वहां पे रजिस्टर होने चाहिए. ये एज अ कंपनी उनको रजिस्टर करना होता है. पेमेंट बैंक्स को भी कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर करना होता है. एंड द डिफरेंस, द की डिफरेंस, द फंडामेंटल डिफरेंस यहाँ पे है, द पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे इज 200 करोड़. इनफैक्ट इन द पेमेंट बैंक्स इट इज ओनली द 100 करोड़. दिस इज द की डिफरेंस. उसके बाद these small finance banks, इनकी जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं यानी किसको लेंड करते हैं, ये होते हैं द पीपल हु आर अंडर सर्व्ड, है ना. देखिए फार्मर्स हो सकते हैं, द पीपल फ्रॉम द मिनॉरिटीज, वीकर सेक्शन के लोग, ठीक है, उनको सर्व किया जाता है यहाँ पे. इसके अलावा द MSME सेक्टर्स में जो इन्वॉल्व है लोग, उनको. सो दे हैव द स्पेसिफिक कस्टमर्स whom they टारगेट. और यहाँ पे यू विल सी कोई भी एंटिटी जिसकी पेड अप कैपिटल
वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकता है जिसकी इट इज़ नियर अबाउट दी 100 करोड़. सो दे कैन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड फॉर्म द पेमेंट बैंक्स. और द की डिफरेंस इज दे कैन give the credit, that means they can give the loans plus they can take the deposits. But in case of the payment banks, you must have heard about बहुत सारे payment bank आपने देखे होंगे, India Post Payment Bank, Airtel Payment Bank, Paytm Payment Bank. So these are the examples of the payment banks. तो वो केवल they can only give you the debit cards. That means they can only टेक द डिपॉजिट. वो लैंड नहीं कर सकते. जब वो लैंड नहीं कर सकते दैट मीन्स वो आपको क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकते. सो दे कैन ओनली गिव यू द डेबिट कार्ड. दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस. सो दिस इज द पर्पस ऑफ द स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स. टू सप्लाई द क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, यस. Second, to supply credit to small and marginal farmers. Yes, we have seen the target customers. Thirdly, to encourage young entrepreneurs to set up business, particularly in the rural areas. No, because इनकी जो target customers होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, not only the young entrepreneurs. तो यहाँ पे the right answer would be 1 and 2. Now coming on to the next question. Priority sector lending started with the establishment of the banking system in India. So here the concept is something related to the priority sector lending. Second, priority sector lending is mainly aimed to give adequate assistance to those sectors which the government and RBI consider as important for the development of the basic needs of the country. देखिए, banks are lending you the money. Banks are lending you the money, but they cannot lend as they want to. देखिए, उनकी lending power को उस loanable amount पे एक restriction कौन लगाता है? RBI, right? So they can only limit, the RBI is limiting the loanable capacity or the loanable amount of the banks. जैसे कि we have discussed in the first video of our economics कि they have to maintain something like SLR and something like CRR. देखिए, ये दोनों चीज़ें उनको मेंटेन करनी होती है. इसके बाद जो बैंक्स के पास जो डिपॉजिट्स आते हैं, इसके दैट मीन्स दे कैन एक्सटेंड द लोन, दे कैन एक्सटेंड द एडवांसेस, यानी वो लोन्स दे सकते हैं. बट द पॉइंट इज दे हैव टू गिव द लोन टू द सम प्रायोरिटी सेक्टर्स. ये कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनको हम रेफर करते हैं एज प्रायोरिटी सेक्टर्स. For example, the sectors like agriculture, MSME, small industries, right, social infrastructure, these are known as the priority sector lending. देखिए, according to the norms of the priority sector, अगर हम priority sector के norms को देखें तो you will see बैंक के पास जितना भी क्रेडिट है, that means बैंक का जो टोटल एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जो होता है उसमें से 40% उनको लेंड करना पड़ेगा, एडवांस करना पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर में. अगर इफ वी हैव टू ब्रेक दिस, 18%, 10%, देन 7.5%, देन 4.5%. 18% उनको लेंड करना होता है कहाँ पे? टू दी सेक्टर्स लाइक वीकर सेक्शन, विमेन, SCs, STs, minorities एंड ऑल. फिर उसके अलावा 10% कहाँ पे? एग्रीकल्चर सेक्टर में. 7.5% कहाँ पे? माइक्रो एंटरप्राइजेस. माइक्रो एंटरप्राइजेस ऐसे एंटरप्राइजेस होते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट इज ₹1 करोड़. और जो ये 4.5% है ये दूसरे कार्यों में, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे लेंड करना होगा. माइक्रो यहाँ पे कवर होगी. इसके अलावा मीडियम इंडस्ट्रीज़ होती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती है, एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दी एजुकेशन, स्कूल्स के लिए, हेल्थ के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए उनको लेंड करना होगा. सो दिस इज़ दी नॉर्म दैट इज़ इन इंडिया. 40% बैंक्स को कहाँ लेंड करना होगा? प्रायोरिटी सेक्टर में. सो द आंसर वुड बी the priority sector lending started with the establishment of the banking system in India. नहीं जी. This priority sector lending has started in India after the 1968. इससे पहले there was no such concept about this priority sector lending, and this statement too is correct.
तो PSL दैट मीन्स प्रायोरिटी सेक्टर में ऐसे सेक्टर्स आते हैं दैट मीन्स दे आर नॉट ओपन टू द एडिक्वेट फैसिलिटीज ऑफ द क्रेडिट, राइट. सो द आंसर इज वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर. करेक्ट स्टेटमेंट इज डी 2 ओनली, राइट, क्योंकि ये 1968 में शुरू हुआ था. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द पेमेंट बैंक्स. देखिए, इफ वी टॉक अबाउट द पेमेंट बैंक्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पेमेंट बैंक्स ऐसे बैंक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जिनकी पेड अप कैपिटल इज 100 करोड़, राइट, और दूसरा दे हैव टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1 एंड दे कैन नॉट गिव यू द क्रेडिट. वो आपको लोन्स नहीं एडवांस कर सकती. यस, दे कैन टेक अप द deposits from you, right. So here mobile telephone companies and supermarket chains that are owned and controlled by residents are eligible to be the promoters of the payment banks. Yes, देखिए इसमें सिंपल सी एक प्री रिक्विजिट है, वो ये है कि आपकी 100 करोड़ अगर पेड अप कैपिटल है तो यू कैन रजिस्टर एज द पेमेंट बैंक्स. And thirdly and secondly, payment banks can issue the credit cards and debit card. No, they can only issue you the debit cards. ठीक है जी. Those are the small financial banks जो आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों इशू कर सकते हैं. Thirdly, payment banks cannot undertake the lending activities. Yes, they cannot undertake the lending activities. तो आंसर क्या होगा? 1. The statement 1 is correct and the statement 3 is also correct, right? So now coming on to the next question, consider the following statement. Here we will be covering about the non-banking financial companies. NBFCs must get itself registered with the RBI as a deposit taking company. 1. Second, for registration they no need to be a company under the Companies Act 1956. अब ये non-banking financial companies क्या है? As I have told you, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में फॉर्मल जब हमने देखी थी, फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दे वर डिवाइडेड इनटू द बैंक्स एंड दे वर डिवाइडेड इनटू द नॉन बैंक्स, राइट. तो नॉन बैंक्स को अगर हम फर्दर ब्रेक डाउन करें तो कुछ नॉन बैंक्स में होती है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट, जैसे कि यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट नाबार्ड, राइट, एक्सिम बैंक, राइट, एंड देन दिस सिडबी एंड नेशनल हाउसिंग बैंक. सो ये क्या है? ये है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इसके अलावा देयर इज वन मोर कैटेगरी दैट फॉल्स इन द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. दे आर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. सो किन कंपनीज को हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोलेंगे? दैट मीन्स सम पार्ट ऑफ द बैंकिंग दे आर डूइंग, सम ऑपरेशंस ऑफ द बैंकिंग दे आर डूइंग. तो मैंने बैंक में आपको बताया था कि बैंक क्या होते हैं, जो लेंड भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी आपसे ले सकते हैं. तो हेयर दे कैन नॉट टेक द डिपॉजिट फ्रॉम यू, दे कैन ओनली एंड ओनली लेंड द मनी टू यू. सो वो सिर्फ बैंक आपको, ये ऐसी कंपनीज होती है दैट आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1. सो प्री रिक्विजिट क्या है? दे नीड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1 एंड सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दे ऑल्सो नीड टू बी रजिस्टर्ड अंडर RBI बट एज डिपॉजिट टेकिंग, है ना. ये थोड़ा सा डाइसी है. डाइसी मीन्स कि डिपॉजिट वो नहीं, आपसे डिपॉजिट नहीं ले सकते, बट दे हैव टू बी रजिस्टर्ड एज द डिपॉजिट टेकिंग एंटिटीज विद द RBI, राइट. तो इस तरह से RBI कैटेगराइज करता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को. So there are so many companies like India Bulls, Sundaram Finance. So these all are non-banking financial companies. So with this, we have completed the second video of the economics. So one more small announcement I would like to make. We have actually started the test series for the upcoming HPS prelims, both on the offline and online basis. So you can avail these test series from our Chandigarh and Shimla center, or online you can also avail these test series. So with this, thank you so much. I hope this series or this initiative is helping you, and we are open to suggestions. You can comment, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much. Namaskar.